सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 10 जनवरी के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो पहले पेज पे खबर 18वें प्रवासी भारतीय दिवस से आती है और भुवनेश्वर उड़ीसा में इसको सेलिब्रेट करा जा रहा है, मनाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व शांति की बात करी है, युद्ध की नहीं, वॉर की नहीं। आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट से उनके सेम सेक्स मैरिज वाले जजमेंट को लेकर रिव्यू करने की बात हुई, मगर उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट थर्सडे डिसमिस पिटीशंस सीकिंग व्यू ऑफ इट्स ऑर्डर एट ruling that it had rejected the prayer to grant legal recognition to same sex marriages. आगे देखते हैं। engaging Taliban drift towards normal relation with Kabul points to enduring a geopolitical realities, but Delhi must underline concerns. Governments might come and go in Kabul, but India ties with Afghanistan has largely retained their strategic character. India stepped up engagement with Taliban, marked by recent meeting of Foreign Secretary Vikram Misri with the acting फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान अमीर खान मुताकी। अभी मीटिंग हुई थी भारत की आपके डिप्लोमेटिक लेवल पे। The return of Taliban was also viewed as a major gain for Pakistan, which was deeply hostile to the regime that fell in Kabul. Yes, in return, the Taliban consistently signaled its eagerness to improve relations with India. Delhi has been cautious in its interaction with Taliban. The policy has changed now with elevation of engagement to the level of foreign secretaries. The slow but certain drift in Delhi towards normal relation with Kabul underlines an enduring geopolitical reality of the subcontinent. Irrespective of the nature of regime in Kabul, monarchical, communist, and Islamist of different kinds, there has been a natural warmth between Delhi and Kabul. और हमारे और काबुल के बीच में संबंध हमेशा बढ़िया रहे हैं. Although the logic geopolitics moving Delhi closer to Kabul, there are two issues concern for India. One, the domestic orientation of Taliban regime in repression of the population and intolerable oppression of women in particular, who are being detained, denied basic rights such as education and minimal personal freedoms. To be sure, India does not have the power to alter the internal politics of Afghanistan. Realism suggests that Delhi must deal with whichever government in power in Kabul, and India cannot give up the core values. It must nudge the Taliban towards political and social moderation. अच्छा देखिए, तालिबान का एक वाला साइड भी है जिसमें वो महिलाओं के खिलाफ है, वुमेन ऑपरेशन में है और कई ब्रूटल किलिंग्स भी इन्वॉल्व रहा है सोसाइटी में। तो ये अभी अपने आप में भारत के लिए चैलेंज कि अगर वो उनसे संबंध बना रहा है तो क्या वो इन चीज़ों को भी अपना अप्रूवल दे रहा है। मीटिंग विद Taliban officials took place in Dubai is a reminder that India can work with UAE and other moderate Arab states in promoting positive changes inside Afghanistan. The second issue in Delhi is unfortunately abandonment of its previous allies in Afghanistan since Taliban returned to power. This included a heartbreaking refusal to give visas to many Afghans who had actively supported India over the decades. Winning new friends in Kabul must be smart, but losing old friends must not be wise. पुराने संबंधों को भी बनाए रखना है। अगला है मेटा ने आपका मेटा फॉलोज द एक्स मॉडल ऑन फ्री स्पीच ग्रोइंग अलाइनमेंट बिटवीन टू बिग टेक लीडर्स स्पार्क्स क्वेश्चन बियॉन्ड यूएस। अब असल में फेसबुक यानी कि मेटा ने कहा था कि हमारा जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है हम उसे बंद कर देंगे। अब फ्री स्पीच है भैया, जिसको जो लिखना है लिखो, जो करना है करो। इसको लेके बड़ी समस्याएं फैल गई हैं समाज में। सरकारों को भी ज़्यादातर दिक्कत रहेगी कि कैसे फिर फेसबुक अकाउंटेबल ठहराएंगे हम प्लेटफॉर्म पे कई बातों को लेकर। There's a huge implications not only for US where an antitrust case against Google has shaken Silicon Valley, but also for the rest of the world. Any changes to user experience and safety in big tech, which may emerge as a response to the politics and policies of a new regime in Washington DC, are bound to be ripple beyond the borders of US. और जो इनका इम्पैक्ट है इन कंपनीज़ का ऑल ओवर वर्ल्ड, ये तो अपन जानते ही हैं। इतना डिसइंफॉर्मेशन फेक न्यूज़ भी फेसबुक पे घूमता है। अब कैसे उसको ठहराएंगे जिम्मेदार और कैसे कंट्रोल करेंगे, ये चुनौती रहने वाली है। अगला आर्टिकल यहाँ पे इंडिया तालिबान टॉक्स को लेकर ही है और कैसे उसको प्रॉस्पेक्ट्स हैं हमारे लिए। पाकिस्तान
से भी घुमाई जो समस्याएं चल रही हैं वो तालिबान से दोस्ती करके कैसे हम काउंटर करेंगे। तो ये इसको आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। भाई कई देश पहले ही मिल चुके हैं, चाइना, उज़्बेकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। हर कोई अपने अपने हिसाब से बात करके आ चुका है। डिप्लोमेटिक लेवल्स पे होती हैं, अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं देशों की। अगला आर्टिकल लेबनान से आता है। लेबनान आर्मी चीफ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट हिजबुल्लाह वीकेंड्स। Lebanon's parliament elected the army chief Joseph Aoun head of the state on Thursday। तो ये खबर है आपकी। इलेक्ट जोसेफ आउन प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं आपके इस समय लेबनान में। जिमी कार्टर साहब का अंतिम विदाई हो गई 39 ईयर्स प्रेसिडेंट की। फ्यूनरल हुआ था पूरे राजकीय सम्मान के साथ यूएस में। और इसके अलावा वाइल्ड फायर्स ही हैं यूएस में जो बहुत ही बड़ी समस्या है। अगला एक्सप्लेन पेज में दे रखा है इकोनॉमिक 2025 हैज़ व्हाट टू एक्सपेक्ट। बट मैं जनरली इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स को इतना नहीं मानता हूँ। कारण ये है कि वो जब तक वो साल अभी साल जो शुरू हुआ है आपका, इसमें ये सब इवेंट्स पे डिपेंड करता है। वी कैन नॉट एक्चुअली से, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर जितने भी प्रॉस्पेक्ट्स वगैरह थे इकोनॉमी को लेके सब फेल ही देखने को मिले हैं। मार्केट ने अलग ही तरीके से अपने आप को रन करा है। ठीक है, फिर भी नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि ये तो टाइम ही बताता है कि इकोनॉमी किस तरफ जाएगी। accompanied with the global events happening across the world। Migration data transmission system led to gold counting errors says government। ये बेसिकली गोल्ड काउंटिंग, गोल्ड रिजर्व में कुछ गलती हो गई थी, उसको लेके यहाँ बताया गया है। इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्विक एनालिसिस में जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। बाकी करंट अफेयर्स के लिए हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू।